আজ সকাল থেকে রাজধানী আগরতলা শহর রিকশা চালকদের দ্বারা পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কেন তারা এই পথ অবলম্বন করলেন তার একটাই কারণ যে বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আগরতলা পুর নিগমের একটা সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তের জেরে রিকশা শ্রমিকরা অনেকটাই রোজগারের দিক থেকে মাঠে মারা গেছেন। শহর এলাকায় ঢুকতে না পেরে বিভিন্ন জায়গায় নো এন্ট্রি থাকার কারণে তাদের রোজগার হচ্ছে না, তাদের পেটে লাথি পড়ছে। এমনটাই আমাদের দ্য সোশ্যাল বাংলার এক্সক্লুসিভ রিপোর্টে আমরা দেখিয়েছি আপনাদেরকে। একাধিক প্রশ্ন তারা তুলে ধরেছেন রাজ্য সরকারের দিকে। প্রথমত, তাদের অপরাধ কি? দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র যে রিকশাগুলোই একটা ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি করে তা নয়, অন্যান্য যানবাহনগুলি রয়েছে সেগুলির দ্বারাও ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে। তো শুধুমাত্র ওই ব্যাটারি চালিত এই রিকশাগুলিকেই বিভিন্ন জায়গায় ঢুকতে দেওয়া হয় না ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। বেশ কিছুদিন ধরে তারা এই বিষয়টা দেখছিলেন এবং এখন তাদের বাঁধ ভেঙে গেছে সহ্যের, যার কারণে এবার তারা ক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। এই গোটা বিষয় নিয়ে, সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমারের কাছে। এই গোটা বিষয় নিয়ে ওনার কি বক্তব্য রয়েছে? উনি আশ্বস্ত করেছেন রিকশা শ্রমিকদের। রিকশা ইউনিয়নের বেশ কিছু নেতৃত্বদের সাথে, প্রতিনিধিদের সাথে দেখা হয়েছে জেলা শাসক বিশাল কুমারের এবং তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে আবারও এই বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা হবে এবং পর্যালোচনা হওয়ার পর সিদ্ধান্তে বদল আসতেও পারে। আমরা দেখে নেব এই গোটা বিষয় নিয়ে আমাদের দ্য সোশ্যাল বাংলাকে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে কি বলছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমার। রাজধানী আগরতলা পুর নিগমের পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে যেভাবে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে তার কারণে কিন্তু একটা যানজট প্রায় সময় লেগে থাকতে দেখি আমরা শহর এলাকায়, আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন ব্যস্ততম এলাকায়। এবং তার জন্য একটা সিদ্ধান্তের জেরে এবার কিন্তু রিকশা চালকরা আন্দোলনে নেমেছেন, যেখানে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রিকশা চালকরা প্রবেশ করতে পারবেন না আগরতলা পুর নিগমের বিভিন্ন এলাকায়। যাত্রী নিয়ে তারা প্রবেশ করতে পারবেন না। কামান চৌমুহনী, পোস্ট অফিস চৌমুহনী, প্যারাডাইস চৌমুহনী, আইজিএম চৌমুহনী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ একটা এলাকা। একটা নির্দিষ্ট সময়, সকালে প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা, বিকেল দিকে প্রায় রাত 8টা পর্যন্ত একটা সময় রয়েছে। এর কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে এবং আজকেও যেভাবে গোটা শহরকে রিকশা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বা যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাদের একটা আন্দোলনের পথ। এবং তারা এটা বলছেন যে তারা রোজগার পাচ্ছেন না, তাদের কাজ হচ্ছে না, তারা রোজগার করতে পারছেন না। তো সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আরো কিছু জানবো। আমাদের সাথে রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমারজি। স্যার, প্রথমেই স্বাগত জানাচ্ছি সোশ্যাল বাংলায়। যে প্রশ্নটা আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যে উত্তরটা দেবেন বা যে প্রশ্নটা রিকশা চালকদের পক্ষ থেকে এসছে যে তারা এখন কি করবে, তাদের রোজগার নেই এবং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কি কারণে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে যদি একটু বলেন। इसका हम लोग सभी सरकार की तरफ से या ट्रैफिक या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंक्लूडिंग लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, हम सभी हमारे जो रिक्शा चालक भाई बंधु हैं इनको सहायता देने के लिए ही हम लोग इस सिस्टम में हैं। और जो व्यवस्था की गई थी उसका मेन पर्पस था कि अगरतला म्यूनसिपल एरिया में जो जिसमें वाहनों की संख्या एकदम से कई गुना बढ़ गई है। लगभग 3.5 लाख वाहन लास्ट 5-6 सालों में बढ़े हैं। तो इस ट्रैफिक को स्मूथ रखने के लिए बहुत ही छोटे से एरिया में जो मेन बाज़ार का एरिया है या बिजनेस या ऑफिशियल हब का एरिया है, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस की गई थी, जिसमें जो बैटरी फिटेड साइकिल रिक्शा थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था कुछ पीरियड के लिए। आज कई हमारे जो कर्मचारी संघ के लोग हैं वो आए थे और सरकार इस पे बहुत सीरियस इस चीज़ पे गौर कर रही है। हम अवश्य करते हैं कि रोजगार, इनका कोई भी रोजगार सफ़र नहीं होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कई लेबर वेलफेयर के लिए भी इश्यूज उठाए हैं, उसको भी सरकार बहुत कंसिडरेट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है।
और गवर्नमेंट का जो मेन वो है कि गवर्नमेंट प्रो पुअर गवर्नेंस है हमारी, और हम आपको आश्वस्त करते हैं और हमारे जो रिक्शा चालक उनको आश्वस्त करते हैं कि उनके रोजगार और उनके जो उनकी जीवन व्यवस्था है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस जो डिसीजन है इसको दोबारा असेस करेंगे और उनके सपोर्ट के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर, उनका एक कंप्लेंट जो ये है कि जो ऑटो है, सीएनजी चालित जो ऑटोज वगैरह है, वो भी तो चलते हैं उस टाइम पे, और वो ये दावा करते हैं कि वो कॉलोनीज में चलते हैं या फिर छोटे छोटे स्ट्रीट्स में चलते हैं। तो इसीलिए वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके इस टाइम पे चलने पर कोई ऐसे ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, तो ऑटोज कैसे चल रहे हैं? तो ये उनका क्वेश्चन था। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जितने भी हमारे बैटरी फिटेड साइकिल रिक्शा हैं, ये अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट में कई बार कोर्ट्स के भी ऑर्डर आए हैं कि ये इनवैलिड है, लेकिन इन हमने एज अ गवर्नमेंट एज अ प्रो पुअर गवर्नेंस हमने इनको अलाउ किया है, इनका रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है और कुछ हद तक बहुत सारी सुविधाएं भी हम उसके अलाउंग देते हैं। और जो बाकी स्टेक होल्डर हैं जैसे बैटरी फिटेड ऑटो रिक्शा हैं या टमटम्स हैं या नॉर्मल जो रिक्शास हैं, उनका भी है इसमें इन्वॉल्वमेंट है ट्रैफिक में। लेकिन एक बात ये सोचनी पड़ेगी कि जो स्पीड लिमिट है उस पे एक साइंटिफिक स्टडी करके ये देखा गया है कि जो स्पीड लिमिट इन व्हीकल्स की है, ये जो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर जो व्हीकल मूवमेंट होता है उससे ये लोग कंपैरेटिवली बैलेंस कर पाते हैं। परंतु जो मॉडिफाइड ये बैटरी फिटेड ई रिक्शा होते हैं, ये पैसेंजर सेफ्टी के हिसाब से भी इनमें समस्याएं हैं, इनकी स्पीड भी बहुत कम होती है। और तीसरा जो सेफ्टी फीचर्स हैं, क्योंकि ये कोई डिज़ाइन तो है नहीं, ये तो पैडल रिक्शा के लिए बनाए गए हैं, तो इनमें फिटेड जो बैटरी सिस्टम है उसकी भी असेसमेंट होना ज़रूरी है। तो इस वजह से पहले एज ए इनिशियल स्टेप देखा गया है, इनमें कुछ हद तक कई टाइमिंग या एरिया वाइज रिस्ट्रिक्शन किया गया है और इसको हर 1-2 महीने पे असेस किया जाता है। इस बार भी हम इनको असेस करेंगे कि किस तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन पाया जाए। हम सभी स्टेक होल्डर्स को लेके दोबारा से बैठेंगे। सर, जो कर्मचारी संघ ने ये आंदोलन किया आज, तो उनके साथ बात हुई आपकी? हाँ, जो रिक्शा यूनियन के लोग थे ये आए थे आज, जिनसे हमारी अच्छी बात हुई और बातचीत के बाद उन्होंने सेटिस्फेक्शन दिखाया है कि सरकार की तरफ से उनको उम्मीदें हैं और हम भी अवश्य आश्वस्त करते हैं कि उनको हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट दिया जाएगा। सर, क्या जो पहले डिसीजन लिया गया था उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे या फिर कोई टाइम मैनेजमेंट का जो टाइम जो था वो कम किया जाएगा, ऐसा कुछ क्या डिसीजन चेंज होगा? देखिए, मैंने जैसे ही अपने पहले उसमें बोला था कि हम लोग सभी के साथ बात करके, जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर्स एक लेवल पे एक डिसीजन होगा, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, ट्रैफिक के लोग, पुलिस के लोग और जो कर्मचारी जो हैं, जो रिक्शा कर्मचारी हैं, रिक्शा चालक हैं, इनको साथ में लेके और एक कंबाइंड डिसीजन लिया जाएगा। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई ऐसा सॉल्यूशन होगा जिससे ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलेगा और हमारे जो भाई हैं, रिक्शा चालक भाई लोग हैं, इनका रोजगार भी बना रहेगा। सर, आपने जैसे पहले कहा कि एक छोटे से जगह में बहुत सारे वाहन जो चलते हैं अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो क्या आने वाले समय में नए रजिस्ट्रेशन वो बंद होने वाले हैं? ऐसा तो कोई भी प्लान नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस अब ये है कि अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्लान्ड एरिया है, जो ग्रोथ है, वो बाकी पेरिफेरल सिटीज़ में किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंशन होगी शहर की, तो ऑटोमेटिकली जो व्हीकल्स का जो ट्रैफिक है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से शहर के बीच में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगा।
दूसरा जो बिजनेस एरियाज़ हैं अथवा जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या जो इस्टेब्लिशमेंट्स के एरिया हैं उनको भी सिटी के बाहर की तरफ हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे अब जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग लैंड दे रहे हैं वो सब शहर के बाहर हैं। हमारा जो ऑफिसेज भी हम लोग जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से दे रहे हैं वो भी शहर के बाहर पेरिफ्रीज में ही दे रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रॉपर प्लानिंग की वजह से जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होगा तो अंदर हमें जगह मिल पाएगी। साथ ही साथ अच्छी टाउन प्लानिंग के हिसाब से हम एश्योर करेंगे कि ट्रैफिक्स का जो व्यवस्था हो, जो पार्किंग की व्यवस्था हो और इम्प्रूव हो, चाहे वो लेयर पार्किंग का सिस्टम हो या और इम्प्रूव पार्किंग कहीं कहीं पे हम क्रिएट कर सकते हैं, ओपन स्पेसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, वो पे उस पर काम चल रहा है। बहुत बहुत শুকরিয়া স্যার। আমরা ইতিমধ্যে সমস্ত বিষয় জেনে নিলাম যে রিকশা চালকরা আজ গোটা শহর জুড়ে তারা একটা আন্দোলন করেছিলেন, তারা ক্ষুব্ধ ছিলেন তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে যে তাদেরকে শহরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বা তারা রোজগার করতে পারছেন না। সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে কথা বললেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক বিশাল কুমারজি। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি স্যার, আপনাকে আবার অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনারা যেমনটা শুনলেন জেলা শাসক বলছেন বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে এই পুরো যানজটের ক্ষেত্রে। সেখানে ব্যাটারি চালিত রিক্সাগুলি নিরাপদ নয় যাত্রীদের জন্য, আবার তার একটা স্পিড রয়েছে, স্পিড লিমিট রয়েছে, সেটা আগরতলা পুর নিগমের মতো একটা ব্যস্ততম শহরের জন্য ঠিক নয়। কিন্তু তাও জেলা শাসক আশ্বস্ত করেছেন যে আগামী দিনে এই বিষয় নিয়ে আবারও পর্যালোচনায় আলোচনা হবে এবং পর্যালোচনা করে দেখা হবে যে সিদ্ধান্তে বদল আসতে পারে কিনা। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি স্পেশাল রিপোর্ট নিয়ে। পরবর্তী খবরাখবরের জন্য চোখ রাখবেন সোশ্যাল বাংলায়। নমস্কার। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explore the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering